to extend a warm and respectful welcome to our esteemed chief guest, our principal, our academic director, distinguished personality, Advocate Rajesh Gupta, the president of BJP District Jammu, a renowned lawyer associated with Good morning to one and all. Today, it gives me immense pleasure to welcome you all to this special program. Sir, your remarkable journey from 1992 to becoming a respectable legal professional and an institutional figure is extremely special for all of us here. We are truly grateful to have you as our chief guest. Your NCC Day. Today we celebrate NCC Day to honor National Cadet Corps and its commitment to shaping responsible citizens through discipline, unity, and patriotism. The motto of NCC is unity and discipline. The NCC is came in India on 15 July 1948 and NCC came in our school on 16 July 2023. The NCC has grown into one of the world's largest youth organizations, molding millions of cadets into leaders who serve the nation. We are proud of NCC achievement from its crucial role in social welfare activities like blood donation and tree plantation to its success in initiatives like Yoga Day and World Record. On this day, we reflected on journey of NCC and reframing dedication to its idol. The NCC training instills qualities such as courage and honesty making its candidates prepare to serve, save, and guard the nation. The organization continue and contribute the national initiative playing a vital role the vision of Viksit Bharat by molding millions of cadet youth into tomorrow's responsible youth. Sujalam, Sufalam, Shitaram, Shasya Shyamalam, Vande Mataram, Suprayosam, Pularityayamini, Kusumita, Sumadara Shobhasini, Sumadurapa, Suprayamataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Jai Hind. Bharat. Thank you for that wonderful word. Cadet Prince Kadgal, Cadet Rahul Pradhan, Cadet Karma Dolma. Thank you, sir, for your inspiring and motivational words. I now invite Sarika from class 9 to present her speech. तो सीख सके। सबसे पहले कॉलेज स्तर पर एनसीसी को लागू किया गया और कुछ वर्षों बाद स्कूलों में भी शुरू कर दिया गया ताकि युवा शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़े। एनसीसी का सर्वोच्च सूत्र वाक्य है एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यही मूल्य हर कैडेट के व्यक्तित्व विकास की नींव रखते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि
एनसीसी सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि देश के लिए समर्पित युवा शक्ति का प्रतीक है। जय हिंद। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना गले गले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती तेरी कसम तेरी राहों में जाऊं जाएंगे भूल चीज हूँ तेरे कदमों में हम एक ऊपर से हो की चढ़ा जाएंगे मैं वतन इंग्लिस्तानी सभी लाल कबीरों से फिर भी रहे हिंदुस्तानी मेरा जापानी इंग्लिस्तानी सभी लाल कबीरों से फिर भी रहे हिंदुस्तानी
वंदे वंदे। बहुत अच्छा लगा आज के इस एनसीसी रेजिंग डे में हमारे मध्य हमारे इस स्कूल के डायरेक्टर भाई अरुण जी, एकेडमिक डायरेक्टर और प्रिंसिपल मैम अनीता जी, उनके साथ पूरा स्टाफ यहाँ पे, और हमारे सम्माननीय यहाँ पे संजय भाई साहब, अनिल अंगराल जी, मेरे मंडल अध्यक्ष हैं समयाल जी, विकास जी, राहुल जी और सभी बैठे हुए बच्चे। कल ही मुझे मैसेज मिला था अरुण जी का। हमारी एसोसिएशन तो बड़ी पुरानी है अरुण जी के साथ। मैं बेसिकली गोमनासा से हूँ और जब मैं कॉलेज पढ़ता था यहाँ जम्मू से जाते थे, गोमनासा से जाते थे गाड़ी में, तो अरुण जी यहाँ से चढ़ते थे। तो अरुण जी तब खड़े रहते थे, हम इनको गोद में बिठा के लेते थे। आपसे भी छोटे थे। बड़ी पुरानी एसोसिएशन अरुण के साथ, और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बच्चों, आज का रेजिंग डे जो सेलिब्रेट कर रहे हो, मैं बड़ा लकी हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मैं भी नेवल यूनिट में था और मैंने J&K को रिप्रेजेंट किया था 92 में। हमारा कैंप लगा था नगरोटा में। वहाँ पहले ATC लगता है, उसके बाद फिर 31 डेज का कैंप लगता है जहाँ पे प्रेपरेशंस होती हैं। मेरी सिलेक्शन हुई थी और जब हम दिल्ली गए तब 100 बॉयज से 66 बॉयज और 44 गर्ल्स थी, जिनमें से 5 लोग हम सिलेक्ट हुए थे राजपथ के लिए। आउट ऑफ दैट 5 आई एम द वन ऑफ देम फ्रॉम जम्मू ओनली। 2 लड़के, 2 कैडेट जो लद्दाख से थे, 2 उधमपुर से थे और राजेश गुप्ता जम्मू से था। और मैं एनसीसी को रिप्रेजेंट करता था। एनसीसी से मैं खाली हुआ था, नेवल से। तो मुझे नेवल की यूनिफॉर्म देख के बड़ा अच्छा लगा। आज बड़ा अच्छा बच्चों ने अभी जो रिप्रेजेंट किया था, कैंप लगा पठानकोट में। मेडल मैटर नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है सबको। पार्टिसिपेशन मैटर करती है। जब आप आगे बढ़ते हो ना, आप में जो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है वो कैसे होता है जनरेट? जब आप पार्टिसिपेशन बार बार करते हो। जब फेल नहीं होंगे, लोग फेल होने से डरते हैं। फेल होना भी बड़ा ज़रूरी है। अब फेल नहीं होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक ही बार अगर आप क्लास में उत्तीर्ण हुए तो पास हो गए अच्छे नंबरों के साथ, तो बाद में यार मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो थोड़ा जिसने टफ समय देखा है वो आगे बढ़ता है ना इंसान, तो उसको अहमियत लगती है, नहीं यार परीक्षा क्या चीज़ होती है। तो मेरा सबको आपको मैसेज है, सभी यहाँ पे बैठे हुए बच्चे, बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपका। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं वैसा वक्ता नहीं हूँ, वो भी करूँगा आपको, लेकिन ये इतना ज़रूर करूँगा कि स्कूल में अब जब आते हो ये ध्यान में रखना है, एनसीसी तो है ही डिसिप्लिन का नाम, लेकिन स्कूल से जो हम डिसिप्लिन लेके जाते हैं वो हमें ताउम्र अपनी लाइफ में अपनाना भी है। और एनसीसी का लिया हुआ 92 से 2 साल मैं रहा हूँ एनसीसी में, वो आज तक मेरे जीवन में ऐसे ही परिपूर्ण है, वैसा ही परिपूर्ण हूँ मैं डिसिप्लिन के साथ। जो मैंने एनसीसी में सुबह उठना, उसके पश्चात जो दिनचर्या होती थी, क्रॉस कंट्री होती थी, उसके बाद हमारी पीटी, फिर ब्रेकफास्ट, तो ये चीज़ अब जब एक बार अपने अंदर ले आते हो ना, उसको मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाती है तो कोशिश करनी चाहिए हमें। घर वालों ने हमें विश्वास देके भेजा, वहाँ स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, वहाँ से सीखेंगे कुछ। अगर हम घर वालों का विश्वास तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको तो दुख लगेगा। अड़ोसी पड़ोसी जो जिनको हम पे विश्वास है उनको भी लगता है यार नहीं फलाने के बच्चे। तो हमें अपने पेरेंट्स का गर्व जो है उसको सर ऊंचा रखना गर्व से, और अपने माता पिता, अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने टीचर्स, पेरेंट्स के बाद टीचर ही गुरु होते हैं।
पहले पेरेंट्स गुरु होते हैं, उसके बाद टीचर्स होते हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा और मैं कामना भी करता हूँ, जो आप यहाँ पे सीखते हो, अरुण सर, प्रिंसिपल मैम, आपका इतना अच्छा स्टाफ है यहाँ का। मैं तो बड़ी देर से देख रहा हूँ स्कूल को, बड़े सारे बच्चे यहाँ से निकल के बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे गए हैं, और आपको उनका भी रिकॉर्ड तोड़ना है। वो कैसे होगा? जब आप जो टीचर्स आप लोगों को सिखाते हैं यहाँ पे, उसको अपनी लाइफ में उतारोगे, उन टीचर्स को। उसके लिए आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। खेलना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन जो टीचिंग्स आपको मिलती हैं उसको अपने जीवन में उतारना 100% नहीं, 90% सही, 80% सही, लेकिन अगर आपने एक बार उसको फॉलो कर लिया उस चीज़ को, तो कोई भी रुकावट आपके आड़े नहीं आएगी आपको आगे बढ़ने में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रेजिंग डे के लिए। 1947 में पहली जो इंडियन एनसीसी का जो गठन हुआ था 1947 में, अभी बताया 48 में। इसके पहले जो ML रावत थे, जिसको फादर ऑफ द एनसीसी बोला जाता है, तब हमारे सरदार पटेल जी गृह मंत्री थे, उन्होंने उसको नाम दिया था फादर ऑफ द एनसीसी। तो पहली जो बटालियन बनी थी वो 47 में बनी थी। 48 में इसका जो गठन हुआ था प्रॉपर, वो 48 में हुआ था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। How are you? Wonderful. So first of all, thank you so much. आज यहाँ पे राजेश भी आए और संजय भी आए, जितने भी अदर गेस्ट्स हैं। राजेश भैया ने जैसे कहा, बिल्कुल सही बात है। जब मैं बिल्कुल छोटा था तो तब स्कूल्स बहुत कम होते थे। एक मॉडल एकेडमी एक स्कूल होता था जहाँ पे मेरी शिक्षा हुई है। तो सुबह सुबह जब हम निकलते थे 6 बजे यहाँ से बस निकलती थी, और उस बस के अंदर हमेशा काफी रश रहा करता था। भोगनासा से एक बस आती थी, एक घंटे की आफ्टर एन आवर एक गाड़ी आती थी। और मुझे याद है, मैं, मेरा कजिन, हम जब गाड़ी में चलते, मेरी सिस्टर, हम जब गाड़ी में चलते थे तो 2-3 भैया होते थे जो वकालत कर रहे थे। कुछ ग्रेजुएशन में थे, कुछ लॉयर बन रहे, और ये हमें गोद में बिठाते थे, और पूरा यहाँ से लेके बस स्टैंड तक हमारे साथ, मतलब बिल्कुल हमारे साथ उन्होंने थोड़ा शेयर करना, और भी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और आज जिस दिन मैं मिला था इनसे, तो मुझे याद आया कि मतलब वो भी एक समय था, और बहुत कुछ इनसे सीखा है। आज भी जब ये आए थे इधर राजेश भैया, आते आते इन्होंने बताया ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्या ये ठीक हो रहा है। तो कहने का मतलब है, जब से इनसे मैं मिला हूँ, कहीं ना कहीं जीवन में मैंने नोटिस किया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल की जब मैं बात करता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए कैसे वर्क लेना है, कैसे हर किसी को अकॉर्डिंग टू हिज सेट ऑफ स्किल्स काम देना है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको आगे चलाना है। जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही राजेश भैया की बड़ी क्वालिटी मैंने देखी है। कोई भी इवेंट है, कुछ है, उसमें बड़ी जबरदस्त तरह से ये अपनी टीम के साथ काम करते हैं। जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि ही बिलीव्स इन टीम वर्क। और वही मेरे को नेम्स पता नहीं थी, तो फटाफट उन्होंने क्या किया, सिर्फ शिफ्ट करवा दी और वो सिमरन को हैंड ओवर करवा दी। तो ये बताता है कि और मैक्रो लेवल के ऊपर जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो कितना ही वो वर्क फिल्टर्ड वे में बाहर आता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि राजेश भैया को मैंने परसों हमने प्लान किया, मैंने राजेश भैया को कॉल किया, एंड मैं भैया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी इनको देखता हूँ मुझे अपना चाइल्डहुड याद आता है। तो एंड ही टोल्ड कि ये तो मेरा अपना स्कूल है, मैं तो आ जाऊंगा। सो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच यू केम हियर। थैंक्स टू मंदिर अध्यक्ष एंड अदर डिग्निटरी लीडर्स फ्रॉम दिस पार्टी, जिस पार्टी से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। उन सबका भी यहाँ पे हमारे स्कूल में होल हार्टेड वेलकम है। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए, और मैं चाहता हूँ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में भैया आए, आपने इनको देखा होगा, संजय भैया। संजय भैया जो है ये एक ऑनेस्टली एक एक्चुअली तो कार्यकर्ता ही है। इनका दायित्व तो बहुत बड़ा है,
काफ़ी एरियाज है जहाँ पे वर्क करते हैं, लेकिन इनको जब मैं देखता हूँ तो मैं एक कार्यकर्ता की नज़र से इनको देखता हूँ, बिकॉज इज ऑलवेज आउट टू हेल्प यू। आप में से किन किन ने इनको देखा है और किन किन ने नहीं देखा है? ठीक है, तो अभी जब आप मोड़ पे जाते हैं, एक शॉप है सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई नहीं थी, संजय भैया की शॉप है, और ये सेवा भारती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस जिसको कहते हैं। किसने आरएसएस का नाम सुना है? ये आरएसएस के जिला पूरे जिला जो पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसको ये क्या करते हैं, उसके अध्यक्ष। तो बाकी थैंक यू सो मच संजय भैया, इनको मैं बार बार बुलाता रहता हूँ, ये आते नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल में बुलाना है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद आप सबका, एंड टू लिली मैम, लक्ष्मी मैम, आप दोनों ने प्लान किया इसको। विक्रम सर जो हमारे एनओ है, एएनओ है, अभी रिसेंटली बने हैं, विक्रम सर कहाँ? विक्रम सर, उनके लिए भी बेटा एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। एंड टू यू, अपने लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग। एक बार हाथ ऐसे करेंगे, एक बार हाथ ऐसे करेंगे और अपने ऊपर करेंगे, बोलो वेरी गुड। फिर यहाँ से भी करेंगे, बोलो वेरी गुड। तो एक बार जोरदार अपने लिए, सबके लिए क्लैपिंग करेंगे। कीप अप द मोमेंटम बेटा, जो आपकी जर्नी है, आपको सक्सेस पानी है। बाकी भैया ने सारा बताया, यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। बस जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट, वो एक स्वदेशी के लिए एक प्लेज आया है, वो आप सब जस्ट स्टैंड